خوبصورت جائے نام ہے آپ سب کو سلام۔ پہلے تو ہم سب ایک دوسرے کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم خدا کی حضوری میں آ کے اس کے نام کو جلال دے سکیں اس خوبصورت نئے سال کے لیے کہ خداوند نے ہمیں یہ ایک نیا سال بخشا کہ ہم پھر سے اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو ضرور ہے کہ ہم اپنے گزرے سال کی کوتاہیوں کے لیے خداوند کے حضور پہلے معافی مانگے کہ اس نے گزرے سال ہمیں وقت دیا، ہمیں موقع دیا، گھڑی گھڑی وہ ہمیں اس بات کو کلام کے ذریعے وہ جتاتا بھی رہا کہ میں نے تمہیں کس لیے مقرر کیا، میں نے کس لیے تمہیں بلایا، میں نے کس لیے تمہیں پیدا کیا، میں نے کس لیے اپنی خدمت تمہارے سپرد کی۔ ہم نے وہ سارا کام لاپرواہی سے کیا۔ آج جو میں خدا کی حضوری میں آپ کے ساتھ کلام کو شیئر کرنے کو ہوں، میرے اس کلام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بھروسہ۔ بھروسے کا مطلب ہے یقین کر لینا، کسی پہ اعتماد کر لینا، کسی کے ساتھ اس قدر اپنے ریلیشن کو قائم کر لینا کہ جیسے کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے آپ اپنی بات اس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہو، اپنا کام اگر آپ جو کرنا چاہتے ہو یا آپ کی کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ اس کے سپرد کرتے ہو تو آپ کو اس بات پہ بھروسہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بے ایمانی نہیں کرے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ہم کہیں دور دراز جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جب ہم واپس لوٹیں تو وہ چیز ہمیں اسی طرح ہمیں واپس ملے، تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ پہلے کوئی بھروسہ مند انسان ہمیں چاہیے، کوئی ایسا شخص جس کے اوپر ہم پورا اعتماد کر سکے، ہمارا ٹرسٹ ہو کہ بھی ہم جب واپس آئیں گے تو وہ چیز ہمیں اسی طرح صحیح سلامت مل جائے گی۔ یا ایسے کہہ لیں کہ آج کل بہت سے ڈے کیئر کھلے ہوئے ہیں کہ جو مائیں جاب کرتی ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے اس میں ایڈمٹ کرواتی ہیں، یعنی ایڈمیشن ان کا کرواتی ہیں کہ جب ہم جاب پہ جائیں تو ہمارے بچے پیچھے سیف ہوں۔ انہیں اس بات کا اعتبار ہوتا ہے کہ یہ ڈے کیئر کی جو ٹیچرز ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں، وہ ہمارے بچوں کی دیکھ ریکھ اسی طرح کریں گے جیسے کہ ایک ماں کرتی ہے۔ تو میری بہنوں، خداوند نے بھی ہم پہ بھروسہ کیا، اس نے بھی ہمیں اس لائق جانا کہ وہ اپنے انجیل کی خدمت کا جو کام ہے وہ ہمارے سپرد کر سکے۔ اس نے ہمیں تو دیانتدار جانتے ہوئے ہمارا نام لے کے ہمیں بلایا کہ ہم اس کھیت میں آگے بڑھیں، ہم اس کھیت میں دیانتداری کے ساتھ کام کر سکے۔ اور اس نے جب ہمیں اڈین کیا، ہمیں بلایا ہے، ہمیں مقرر کیا ہے، کسی کو مبشر، کسی کو ڈیکن، کسی کو ایلڈر، کسی کو پاسبان، کسی کو چرواہا، یہ سارے جو عہدے ہیں یہ خداوند کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ اگر کوئی انسان کہے کہ میرے اندر خوبی ہے، میرے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں یا میں کرتی ہوں، اس لیے مجھے یہ عہدہ ملا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ اس بات پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تب تک کوئی عزت پا نہیں سکتا جب تک وہ ہارون کاہن کی طرح بلایا نہ جائے۔ تو ہم خدا کی نظر میں کیا ہیں؟ ہم عزت کے لائق ہیں، ہم بھروسے کے لائق ہیں، ہم اعتبار کے لائق ہیں کہ خدا نے ہم پہ بھروسہ کر کے یہ کلام کی خدمت ہمارے ہاتھوں میں دی ہے۔ تو کیا ہم نے اس بھروسے کو قائم رکھا؟ کیا ہم خدا کے بھروسے پہ پورے اترے؟ جو خدا نے ہمارے لیے منصوبہ رکھا، جو خدا کا ہمارے لیے پلان تھا، جو خدا چاہتا تھا کہ ہم آگے بڑھیں، ہم بچے ہیں تو ہم اوروں کو بھی بچانے کا کیا بنے؟ سبب بنے۔ لیکن ہم نے کتنی روحوں کو بچایا؟ ہم نے کتنے لوگوں کو کلام کی منادی سنائی یا ان کے درمیان جا کے ہم نے کلام کا بیان کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس میں میں بھی شامل ہوں، ضروری نہیں کہ آپ ہی ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں۔ ہم نے خدا کا سارا کام لاپرواہی کے ساتھ کیا، اس نے تو ہم پہ اعتبار کر کے ہمیں اس لائق ٹھہرایا کہ ہم اس کلام کو بیان کر سکے، لیکن ہم نے لاپرواہی کے ساتھ کام کیا۔ اگر ہم ایلڈرز کی طرف دیکھیں تو پاسبان کے بعد، پاسٹر کے بعد
उसकी खिदमत जो है वो चर्च के अंदर नजर आती है, क्योंकि एल्डर को एक मुकद्दस मुकाम दिया गया है। तो क्या जो एल्डर हैं उन्होंने इस काम को दयानतदारी के साथ किया? और एक डीकन की खिदमत होती है चर्च के अंदर लोगों को सीधा करके बिठाने की, उनकी तरतीब करने की, उन्हें जो अगर कोई इस तरह का कोई काम बच्चा कर रहा है तो उससे उस काम से रोकने की। और एक मुबशर की ड्यूटी होती है कि वो शागिर्द बनाए, कलाम को बयान करे। लेकिन हमारे अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कि हम फख्र के साथ कह सके कि गुजरे साल हमने ये सारे काम किए, हमने दयानतदारी के साथ काम किया, और जब हम खुदावंद की हजूरी में आए तो हमने खुदा से शाबाश हासिल की। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सके। आज इसी ताल्लुक से हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6 आयत। मिल जाए तो आमीन बोलिएगा। कलाम मुकद्दस में से आज हम अपनी तंबी और नसीहत के लिए भरोसे के ताल्लुक से देखेंगे कि खुदा ने हम पे जो भरोसा किया है, हम उस भरोसे के लायक है भी या नहीं। मेरे साथ देखिए लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6 आयत से। आयत में यूं मरकूम है, फिर उसने ये तमसील किसी फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावंद, इस साल तो और भी इसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और गोडी करूं, और अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जैसा कि मैंने बताया है भरोसे के ताल्लुक से, और अब यहाँ पे जो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, लोगों को ये एक तमसील सुना रहे हैं। ये कोई एक वाकया नहीं, हकीकी वाकया नहीं है, बल्कि एक तमसीली बयान है। जैसे कह रहे कि किसी को इजी तरीके से गाइड करने के लिए ये तमसील बयान की गई है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान में किसी बागबान ने क्या किया, एक दरख्त लगाया, और वो दरख्त कौन सा था? अंजीर का दरख्त। और अंजीर के बारे में बताया जाता है कि कलाम मुकद्दस इसकी बड़ी अफादियत बताते हैं कि कलाम मुकद्दस में अंजीर के बारे में जगह जगह बयान किया गया है कि ये किस तरह हमारे लिए मुफीद है। अगर हम यसाया के सहीफे में देखते हैं तो जब यसाया को पैर का रोग लगा तो उसे ये कहा गया कि अपने पाँव पे क्या कर, अंजीर की टिकिया बांध ले, ताकि तेरा जख्म चंगा हो जाए। और फिर जब हम देखते हैं कि जब सर्दियाँ ज्यादा हो जाती हैं तो हम अंजीर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुव्वत रहे। इसी तरह खुदावंद मसीह बताते हैं कि एक पाकिस्तान में क्या लगाया गया, अंजीर का दरख्त लगाया गया। और जब उसका बागबान आया और उसने इसमें देखा कि इसमें पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं है, कोई फल नहीं है, तो उसे उस पे क्या आया, गुस्सा आया। उसको उसके ऊपर क्रोध आया कि मैं इस दरख्त की जो हिफाजत कर रहा हूँ, जो मैंने इतने प्यार से लगाया है, इस गर्ज के साथ कि मुझे इसमें से फल मिलेगा। और अब 3 साल हो गए हैं कि मैं जब भी आता हूँ इसमें से अंजीर का फल लेने के लिए, तो मुझे सिवाय पत्तों के कुछ भी नजर नहीं आता। तो उसने फिर बागवान से कहा कि इसको क्या कर, काट डाल। ये जमीन को क्यों रोके हुए है? इसने सिर्फ एक जो जगह है वो घेरी हुई है। लोग इसे सिर्फ देख के खुश होते हैं कि अंजीर का दरख्त लगा हुआ है, और ये भी अपने आप में बड़ा प्राउड फील करता है कि मैं एक तनावर दरख्त हूँ और मेरे ऊपर क्या है, पत्ते बहुत सारे लगे हुए हैं। लेकिन कोई भी दरख्त पत्तों से खूबसूरत नहीं लगता जब तक कि उसके अंदर फल ना हो। तो उसने कहा कि इसको
काट डाल, ये जमीन को क्यों रोके हुए है। तो फिर वहां पे बागबान क्या उससे कहता है कि है मेरे मालिक, इस साल तो तू इसे रहने दे, मैं इसके गिर्द क्या करूंगा, खाला खोदूंगा, यानी इसकी गोडी करूंगा, इसकी जमीन को नरम करूंगा, इसकी जड़ों तक क्या होगा, पानी जाएगा, इसमें मैं खाद डालूंगा, इसकी मैं और हिफाजत करूंगा। और अगर इस साल भी इसमें फल ना आया तो तू क्या करना, इसे काट डालना। और फिर हम जानते हैं कि जब किसी दरख्त को काटा जाता है तो फिर उसका क्या अंजाम होता है, उसका क्या हाल होता है। ऐसे ही हम खुदावन की नजर में है। यीशु मसीह ने हमें इस भरोसे पे अपनी ये अंजील का काम दिया है। उसने ये खूबसूरत पैगाम हमारे हाथों में दिया है कि हम इस पैगाम को क्या करें, फैलाएं। और हम सालों साल से एक लेबल लेके एक ही जगह पे रुके हुए हैं। डीकन है, एल्डर है, मुबशर है, पासबान है। हम क्या करते हैं, हम इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि हम पे एक लेबल लगा हुआ है। जैसे हम कोई ब्रांड की चीज खरीदते हैं तो उसके ऊपर लेबल लगा होता है कि ये फलां फलां ब्रांड की चीज है, और हम खुशी से उस चीज को क्या करते हैं, लेते हैं। हम बड़े खुश होते हैं कि हमने ब्रांड की चीज को हासिल किया है, और बड़ी खुशी के साथ आगे उस चीज को हम दिखाते हैं कि ये देखो, इस ब्रांड की मैंने ये चीज ली है। इसी तरह हम खुश होते हैं कि हमारे ऊपर लेबल लगा हुआ है। लेकिन वो लेबल सिर्फ नाम ही का लेबल नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर उसके काम की करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। हमारे अंदर वो फल भी होने चाहिए जो यीशु मसीह ढूंढता है। हम क्या फलों से भरे हुए हैं। आज अगर हम किसी को कह दें कि फला जगह पे मीटिंग है, आपका मैसेज है या आपकी मीटिंग लीड है, तो वो बहन क्या होती है, वो घर ही बैठ जाती है। कोई ना कोई बहाना वो तलाश कर लेती है कि मुझे मीटिंग में जाना ना पड़े। जबकि आपके सुपुर्द ये खिदमत की गई है कि आपने इस पैगाम को फैलाना है। तो पैगाम को कैसे फैलाएंगे, जब हम घर से बाहर निकलेंगे। आज हम भी इस दरख्त की तरह जगह को घेरे हुए हैं। आज हम भी इस दरख्त की तरह हम क्या है, खाली पत्तों से भरे हुए हैं। लेकिन आज खुदा हमसे फल चाहता है। आज वो चाहता है कि हम जो एक दरख्त बन चुके हैं, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि जब हम बुलाए जाते हैं तो फिर खुदा की मोहर हम पे लग जाती है। वो हमें इस बात के लिए, वो तो हमें तैयार करता है कि मैंने ये खिदमत तेरे सुपुर्द की है। अब इस खिदमत को, जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि बुजुर्गों के हाथ रखने से जो खिदमत तेरे सुपुर्द की गई है, इसे अब तू क्या कर, चमका दे। तो चमकाना ऐसे तो नहीं है कि हम साबुन ले, स्कॉच ब्राइट ले और उस लेबल को हम घिसाते जाए, धोते जाए कि ये लेबल जो सा है, ये लेबल गंदा ना हो। ये जो मुबशर का, एल्डर का, डीकन का जो मेरे ऊपर लेबल लगा हुआ है, उस लेबल को सिर्फ हम धोते रहते हैं। लेकिन इस लेबल का मतलब क्या है, इस लेबल को चमकाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, कभी हमने इस चीज पे गौर किया ही नहीं। अगर कोई हमें चर्च में कोई एल्डर कह के बुलाता है, तो कोई डीकन कह के बुलाता है, कोई मुबशर कह के बुलाता है, तो हम उस वक्त बड़े खुश होते हैं। लेकिन क्या अंदर आपकी जो रूह है वो खुश है? क्या खुदा का पाक रूह खुश है? क्या खुदा हमसे खुश होता है कि मैंने तुझे किस लिए बुलाया है और तू क्या काम कर रहा है, कर रही है? आज तक हमने उस जरूरत को जाना ही नहीं। आज तक हमने अपनी हैसियत को पहचाना ही नहीं। आज तक हम सिर्फ चर्च के अंदर जगह को रोके हुए हैं। हम अपनी जगह से हटते ही नहीं हैं, क्योंकि हम बड़े शौक से ज़बूर को पढ़ते हैं कि सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। लेकिन अगर जब कभी चर्च में कोई ऐसी तक होती है, कोई बात आती है, तो फिर क्या होता है कि जी हम गुस्सा करके बैठ जाते हैं कि जी मैं डीकन हूँ, मैं एल्डर हूँ, मैं मुबशर हूँ, मुझे आगे नहीं किया गया, तो जो पीछे है उससे उठा के आगे कर दिया है। उस वक्त हम शर्मिंदगी फील करते हैं और
गुस्सा भी हमें आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेरी बहन, इस बात को तो सोचो, आपने आज तक चर्च के लिए क्या किया है, आज तक अपने खुदा के लिए क्या किया है, आज तक अपनी आपने खिदमत को कैसे आगे बढ़ाया है। आज वही कलाम हमारी जिंदगी के अंदर पूरा हो रहा है कि जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे और जो आखिर है वो अव्वल हो जाएंगे। हमारे बाद जो बहनें अब खिदमत में उठ रही हैं, वो कितनी सरगर्म है, वो कितनी खुदावंद के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी जिंदगियां कितनी दुआया जिंदगियां बन चुकी हुई है। और उनके दुआ करने के स्टाइल से, उनके बोलने के स्टाइल से, उनके पुरपट पे खड़े होने के स्टाइल से ही खुदा का पाक रूह काम करना शुरू हो जाता है। तो आज तक हमारी दुआ रंग क्यों नहीं लाई, आज तक हमारे वसीला से कोई रूह क्यों नहीं बची, आज तक हमने अपने चर्च के अंदर वो इज्जत क्यों नहीं पाई। कभी आपने सोचा है? हम सजे सजाए उस पे मस्बा पे जाके बैठ जाते हैं, कभी हमने उस मस्बा की जरूरत को जाना है कि इस मस्बा पे मेरे वसीला से आग लगनी चाहिए। आग वो नहीं जो घरों को बर्बाद कर देती है, आग वो नहीं जो जिंदगियों को तबाह कर देती है, आग वो नहीं जो आपके जिस्म को झुलसा दे, बल्कि पाक रूह की आग आपके अंदर होनी चाहिए, पाक रूह का मस्सा आपके अंदर होना चाहिए, पाक रूह की कुव्वत आपके अंदर होनी चाहिए, पाक रूह की कुदरत आपके अंदर होनी चाहिए कि जब आप किसी के लिए दुआ करें तो ये बात जाहिर हो कि वाकई ही आप खुदा के बुलाए से बुलाए गए हैं। खुदा ने आपको खुद नाम लेके अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, और वो खिदमत जो फिलिसिया के बुजुर्गों के हाथ रखने से आपको मिली है, आपने उस खिदमत को क्या किया है, चमकाया है, उसको बढ़ाया है। ना कि आपने उस तोड़े की तरह उसे दबा दिया है कि जब मेरा मालिक आएगा वो मुझसे इस तोड़े को तलब करेगा तो मैं जल्दी से निकाल के ये तोड़ा उसे दिखा दूंगा, और मेरा मालिक क्या होगा, खुश होगा कि मैंने इस तोड़े की क्या की है, हिफाजत की है। उसने ये तोड़े हमें दबाने के लिए नहीं दिए, उसने ये तोड़े हमें आगे बढ़ाने के लिए दिए हैं। उसने ये कहा है कि जो कलाम तेरे अंदर है, जो तू कलीसिया में सुनती है, जो तू अपने चर्च में सुनती है, जो तू अपने पास बान से सुनती है, उस कलाम को क्या कर, आगे डिलीवर कर, आगे बयान कर। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि तू जो बचा है तो तू औरों को भी बचाने का वसीला और सबब बन जा। और ये तब ही मुमकिन होता है जब हम इस कलाम को सुन के आगे डिलीवर करते हैं, ना कि अपनी जिंदगियों तक इसे महदूद करके रख दे। हम इस बात के लिए खुश ना हो कि मैंने तो निजात पा ली है तो बाकी क्या करें, खड्डे में जाए, जो मर्जी उनके साथ हो। इस बात के लिए खुद गर्जी इस्तेमाल मत कीजिए, खुद गर्ज मत बन जाइए। बल्कि इस कलाम को जब आप सुनती हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जब बहनों के अंदर बैठती हैं, अपने खानदान के अंदर बैठती हैं, अपने बच्चों के अंदर बैठती हैं, तो कलाम की इन बातों को शेयर कीजिए, कलाम की इन बातों को बयान कीजिए कि आज मैंने चर्च के अंदर इस कलाम को सुना है। तो मेरी बेटी सुन, खुदा मुझे और तुझे क्या तंबीह करता है। ऐ मेरे बेटे सुन, खुदा ने क्या पैगाम हमें दिया है। ऐ मेरे साथी आज देख, खुदा हमें किस लिए इस दुनिया में लेके आया है। इस खिदमत को आपने आगे बढ़ाना है, इस खिदमत को आपने आगे बयान करना है, इस कलाम को लेके आपने आगे चलना है। ऐसा ना हो कि मेरा और आपका बागबान आए और हमें क्या करे, वो काट डाले और वहां पे फेंक दे जहां पे रोना और हमेशा दांतों का पीसना और हमेशा का रोना है। ऐसा ना हो कि वो हमें उस जगह पे डाल दे। और जब फिर कलाम में लिखा हुआ है कि मैं आऊंगा और तेरे चिरागदान से उस क्या करूंगा, उस चिराग को हटा के किसी दूसरे का चिरागदान रख दूंगा। यानी मेरी और आपकी जो खिदमत है, मुझे और आपको जो ओहदा मिला हुआ है, वो हमें उससे क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा। और जो हमारे बाद आने वाली है वो उन्हें उस जगह पे उड़ेन कर देगा। फिर उस वक्त हमें एहसास होगा कि इतने सालों से खुदा हमें वक्त दे रहा था, खुदा हमें मौका दे रहा था, खुदा हमसे कलाम कर रहा था, खुदा हमें ये बयान कर रहा था कि देख मेरी बेटी, मैंने जो खिदमत तेरे सुपुर्द की है, इस खिदमत को आगे बढ़ा। उस वक्त फिर हमें एहसास होगा,
उस वक्त हमें शर्मिंदगी भी होगी। उस वक्त हम अपना मुंह छुपाते फिरेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई देख के मुझ पे उंगली उठाए कि कल तो ये डीकन की चेयर पे था, कल तो ये एल्डर की चेयर पे था, कल तो ये मुबशर की हैसियत से आगे बैठा हुआ था, तो आज इसको उठा के पीछे कर दिया गया है, और जो पीछे बैठे हुए थे उन्हें उठा के आगे ले आए हैं। तो ऐसा फिर जब हम देखेंगे तो फिर हमारे मुंह पे शर्मिंदगी होगी। तो मेरी बहनों, इससे पहले कि वो वक्त मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आए, हमें अपनी खिदमत को पहचानने की जरूरत है। 2022 भी गया, 2021 भी गया, 2020 भी गया, बहुत सारे साल हमने ऐसे ही गवा दिए, सिर्फ इस लेबल को लेके हम बैठे रहे। इस लेबल का मतलब क्या है? जो खिदमत हमारे सुपुर्द की गई है, वो खिदमत कौन सी है, हमने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। इस बात से हमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमने 2023 को देख लिया है। हमने 2023 की आज 13 तारीख हो गई है, और अब तक हम जिंदा और जिंदों की जमीन के ऊपर है। अब तक हम खुदा के घर में जाते हैं। अब तक हमारी वही रूटीन है कि कलाम को चर्च से सुन के आए हैं, और जैसे ही हम बाहर निकले हैं वो कलाम भी हमारे जहन से बाहर निकल गया है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो इस दुनिया से चले गए हैं उनका हिस्सा तो कट गया, उनकी तो आखिरत जो है वो ऊपर उनके साथ, उन्हें ही पता कि उनके साथ क्या होना है। लेकिन आज जो हम जिंदा है, हमें अपनी फिक्र करने की जरूरत है, अपने बच्चों की, अपने घराने की, अपने साथियों की फिक्र करने की जरूरत है। और ये फिक्रिया लम्हा हमारे लिए है कि आज कलाम मुझे और आपको क्या तसल्ली देता है, क्या हम पे वो भरोसा करता है, क्या उसने हम पे एतबार किया है, और क्या हमें वो नसीहत कर रहा है कि हमने इस कलाम के वसीला से क्या कुछ करना है। आज इस बात को जानने की जरूरत है। और मेरी बहनों, जब भी आपको मौका मिलता है, बहुत सारी बहनें हैं जो जब इकट्ठी होती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, एक दूसरे की ऐब जोई करती है, जबकि कलाम में लिखा हुआ है कि ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी की जाएगी। हमें इस बात से डरने की जरूरत है, बजाय कि हम एक दूसरे की ऐब जोई करें, एक दूसरे की हम गलतियों को निकालें, एक दूसरे की खामियों को हम देखें, और बल्कि हमें ये करने की जरूरत है कि जब हम बहनें इकट्ठी होती हैं तो हमें कलाम की बातों को शेयर करने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ कलाम को शेयर किया कीजिए, एक दूसरे के साथ कलाम की बातें किया कीजिए, ताकि जो आपका जहन घर के बातों से उलझा हुआ है, जो आप ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, जो आप तरह तरह की उलझनों में फंस रही हैं, उस उलझन में से निकालने के लिए, उस डिप्रेशन से आपको आजाद करने के लिए, आपके जहन को फ्रेश करने के लिए खुदावन ने ये हमें खूबसूरत कलाम दिया है। जब हम मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, किसी भी ऐसे दुख में होते हैं, तो जब हम कलाम को खोलते हैं तो कलाम हमें तसल्ली देता है। और ये तसल्ली एक दूसरे को दिया कीजिए कि खुदा ने हम पे भरोसा किया है, खुदा ने हम पे एतबार किया है, खुदा ने हमें नाम लेके बुलाया है। आज जरूरत है कि हम इस तोड़े को आगे बढ़ाएं। आज जरूरत है कि हम अपने अंदर फल को पैदा करें, वो फल नहीं जो बाजारों में बिकता है, वो फल नहीं, बल्कि वो फल जो रूहानी फल है, वो फल जो पाक रूह से लदे हुए हैं, वो फल जो हमारे अंदर जिंदगियों को बदल देने के लिए है, वो फल जो खुदा की जरूरत को पूरा करते हैं, वो फल जिससे हम जाने और पहचाने जाएं कि दर हकीकत मैं और आप खुदावंद ही की बेटी और बेटे हैं। वो उसने हम पे भरोसा किया है, और उसने ये खूबसूरत कलाम मेरे और आपके सुपुर्द किया है। दोस्तों, मेरी बहनों, आज आपके अंदर इस बात को उजागर करने की ये जरूरत है कि आप अपनी हैसियत को जाने। आज इस अंजीर के दरख्त की तरह मत बन जाइए कि जब खुदावंत का वक्त आए, जब खुदा आए, तो वो मुझ में और आप में सिर्फ पत्तों को देखे और कोई फल ना पाए, और फिर वो कहे कि इन्हें वहां पे डाल दो जहां पे रोना और दांतों का पीसना है। बल्कि जब वो आए तो हम फलों से भरी हो, हम फलों से लदी हो, हमारी डालियां झुकी हो,
और हमें वो देख के कि मेरी बेटी के अंदर इतने रूह के फल हैं, वो इतनी रूह से भरी हुई है, इसने इतनी रूहों को बचाया है, इसने इतनी जगह पे जाके मेरे कलाम का प्रचार किया है, इसने बहुत से लोगों को मेरा कलाम सुना के नजात के वो नजदीक लेके आई है। तो खुदा इस बात से खुश हो और फिर हमें वो क्या दे, शाबाश दे, और वो कहे कि शाबाश ए अच्छे और दयानदार नौकर, मैंने जो खिदमत तेरे सुपुर्द की तूने उसे पूरी दयानदारी के साथ निभाया है। और फिर वो हमें क्या कहे कि तुम मेरे साथ हवा में उड़ के, बादलों में मेरे साथ आसमान पे जाने वाले उस बादशाही के फर्जंद बन गए हो जिसको मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तो क्या आप आसमानी बादशाही में जाने के लिए तैयार हैं? तो आज से सिर्फ आपको सिर्फ लबों से इस बात को नहीं निकालना कि मैं खुदा की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये काम करूंगी, बल्कि आज अपने रूह के साथ खुदा के साथ वादा कीजिए कि खुदावंद मुझे वो दरख्त बना दे जो फलों से भरा हो, जिसकी डालियां झुकी हो, जिसे देख के इंसान नहीं बल्कि तू खुद खुश हो, और फिर तू कहे कि तू मेरी अच्छी बेटी है। उसने तो हमें इस भरोसे के लायक जाना है। क्या हमने उसका भरोसा जीता है? क्या हमने इस भरोसे को कायम रखा है? क्या हम इस भरोसे पे पूरे उतरे हैं? आज वक्त है, आज जरूरत है। ऐसा ना हो कि आज का दिन जो अब हम देख रहे हैं, इसके अगले ही लम्हे हमारे साथ क्या हो जाए, मैं और आप नहीं जानते। अपने आने वाले वक्त की फिक्र कीजिए, अपने आने वाले वक्त को संवारिए, अपने आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, ताकि खुदा जब आए तो हम क्या करें, खुशी के साथ उसका इस्तकबाल करने वाले बने। ऐसा ना हो कि जब हम उठे तो हमारे हाथ खाली हो, हमारे बदन खाली हो, हमारा ज़हन खाली हो, हमारा जो किताबे हयात में खुदा ने नाम लिखने को कहा है, तो जब किताबे हयात में नाम लिखे जाए तो हमारा नाम ही ना हो। अपना नाम लिखवाने के लिए आपको इस कलाम को लेके चलने की ज़रूरत है। खुदा के साथ अहद पैमा करने की ज़रूरत है कि खुदावन, मैंने पिछले साल ऐसे ही लापरवाही से गुजार दिए, अब जो तूने वक्त मुझे दिया है, जो तूने नया साल मुझे बख्शा है, मुझे इस साल में पूरी दयानदारी के साथ अपने साथ वफादार रहने का फजल बख्श दे, ताकि जलाल सारे का सारा तेरे ही नाम को मिले। खुदा आपको बरकत दे, आप अपने हाथ को बढ़ाए और खुदा को कि इस कलाम पे आपको अमल करने का खुदा फजल बख्शे। अपने सर को झुकाए,